everyone. This is Kumar Abhishek, and I have qualified JKPSC's ALR and DLO exam by scoring rank 2 in state of JNK. And the purpose of this video is to share my transcript of the interview that was held on 7th of April. And I want to share my experience because when I faced a few interviews of JKPSC, I found that there was no such mock interviews online available, or there was no experience shared by anyone regarding the interviews. So it creates a little bit trouble. And if we talk to someone, and if someone shares his transcript and how the interview went well, and means what are the things that needs to be improved, what are the mistakes that can be avoided, so that helps a lot. And personally, I did not find any such video or any such personal experience shared by anyone. So my motive is to just to share my transcript. And for that purpose, when I just came out of the interview, and the first thing I did was to take a pen and a copy and write all the questions on that copy, because those questions were very fresh in my mind and I remembered every question. And during before my interview, I talked to many aspirants. They helped me a lot. Those who particularly who have qualified the recent prosecuting officer exams, I randomly messaged people, found their number from WhatsApp, and tried to talk with them. I But they helped me, but they did not exactly remember the questions that were being asked to them. So I thought that it might be helpful for anyone who is going to face the interview, and so that uh, he may take a guidance and he may prepare accordingly. So starting my interview was held on 7th of April. Before that, I would like to tell that I have faced the interview of judicial services, and it was not a very pleasant experience for me, because it was my first interview, and I committed a few mistakes. So this time in this interview, I did not take any risk, and I tried to do everything possible and to rectify my mistakes. So starting with this, that my interview went for, I think, exact time I do not remember, but 17 to 20 minutes. When the other candidates, they after my friends, after their interview, when I went inside, they just tried to note the time, and they told me that it was on a bit on a longer side. So it was for approximately 17 to 20 minutes. And my strategy for the interview was that, as I have practiced law at Jammu under in the chambers of senior advocate Vikram Sharma sir. And but I did not have a, means, a very good hold over the practice. I had not done independent practice, and so it was a kind of tricky thing for me. And so I try to play very I try to plan my interview according to myself. So when they asked me that, firstly when I entered the door, and um, they asked me that, when I sat down, and they asked me that, um, introduce yourself. So my introduction was like, my name, my school. It was very short, to the point. My where do I belong, my college. And after that, I told that I passed out in 2000. Sorry, I did not told them the year. But I told them that after my college, I started preparing for competitive exams, and in between, I joined courts, and I practiced law. And right now, I am preparing for the competitive exams. So this was a little bit, very to the point, and little bit diplomatic thing, I would like to say. And I did not end here. I did not stop here. After that, I took a risk, and it was a planned risk. I said that my favorite subjects are in the like CRPC, Constitution Law, and Evidence Act. Now this was a big thing, because generally we need to say the favorite subjects if they ask, and if they ask, we have to say only one favorite subject. Generally, people say one favorite subject. I I kind of planned that I will say three subjects, because on these three subjects I had a very good hold. So I took a risk. I knew that they are going to grill me, because it was a big thing to say three subjects. So
And I just said in the order, like I knew that the last subject which I will say, they may ask questions from that. So last one was evidence, and evidence was very was a strong. I had a very strong hold over evidence. In the prosecuting officer mains, I scored approx I think 150 in evidence act. So when I said this, then there were four total members, and one was chairman sir, one was judicial member, and two were the experts. And one guy was which only I noticed, no one else noticed, because the reason was that I had been to the chambers of chairman sir previously. So where actually chairman sir sits, there was a fifth person which I have observed, and he was kind of sitting in the hiding. He was a psychologist according to me. No one can see him, but by chance I just saw him, and there were five people according to me. So when I said my five subjects, so sorry, these three subjects, they started laughing. Means they started they started means looking to each other and saying कि अंदर ही अंदर वो सोच रहे थे कि अच्छा ये तो फंस गया. मीन्स बहुत बड़ी बात कर दी इसने कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ CRPC. मीन्स दे स्टार्टेड रिपीटिंग ओके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ओके CRPC एंड स्टार्टेड लाफिंग. सो थोड़ा सा मुझे तब नर्वसनेस हुई कि दे आर गोइंग टू ग्रिल मी. तो फर्स्टली चेयरमैन सर ने स्टार्ट किया, एंड इट वाज अ काइंड ऑफ फैक्चुअल थिंग्स. कुछ सही हुई थी, कुछ गलत हुई थी, कुछ मैं नहीं आंसर कर पाया. तो सर ने तो इजी ही स्टार्ट किया. सर ने कहा कि आप मुझे एग्जैक्टली नहीं पता हिंदी में पूछा कि इंग्लिश में पूछा, बट मैंने इंग्लिश में ही आंसर किया था. तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कि पार्लियामेंट क्या कॉन्स्टिट्यूट क्या 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 उसके पार्ट्स होते हैं. What constitutes parliament? So I told them that this president, Lok Sabha and Rajya Sabha. Then they asked me that what is the strength of Lok Sabha. अब उसमें दो चीज़ें आती हैं कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है और एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है. उस टाइम हमें इतना दिमाग नहीं चलता. तो ऑन द स्पॉट मैंने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली 550. Then chairman started laughing. Means he said, "What do you mean by approximately? Means you should say the exact number." So मैंने कहा सर sorry I am not able to recall exactly, but I think it's between 530 to 550. And then they started discussing the okay there were 552 members to have been there is amendment, and Anglo Indians have not been now been are not being the members of Lok Sabha. सो जब भी वो बात कर रहे थे तो मैंने थोड़ा सा बोल दिया कि यस सर देयर इज़ अमेंडमेंट रिसेंट अमेंडमेंट, एंड उसमें जो दो सीट्स थी नॉमिनेटेड मेंबर्स की वो अब नहीं है एंग्लो इंडियंस की. तो उसके बाद चेयरमैन सर पूछते कि व्हाट आर एंग्लो इंडियंस. एंड मैंने काफ़ी देर से मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, बट इस पोर्शन पे कभी मैंने ध्यान नहीं दिया था. बट इंटरव्यू से एक रात पहले बाई चांस मेरे दिमाग में ये आया था, एंड जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स आई सर्च इन ऑन इंटरनेट. एंग्लो इंडियंस का मैंने सर्च किया था, बट मैंने प्रॉपरली सर्च नहीं किया था. तो मैंने उनको बताया कि एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जो जिनके दोनों पेरेंट्स जो यूरोपियन थे, उनके जो जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए थे, दे आर कॉल्ड एंग्लो इंडियंस. तो चेयरमैन सर ने कहा कि नहीं यार, एक पेरेंट होता है कि दोनों पेरेंट होते हैं. तो मुझे थोड़ा मेरा कंसेप्ट गलत था, तो मैंने कहा कि दोनों पेरेंट्स होते हैं. उन्होंने कहा नहीं नहीं एक पेरेंट होता है. तो मुझे लगा कि ही इज़ ट्राइंग टू ग्रिल मी, ही इज़ ट्राइंग टू पुल माई लैग. सो आई सेड नो नो सर, बोथ द पेरेंट्स आर यूरोपियंस. एंड मैंने उनको थोड़ा सा हिस्ट्री बताया कि जब जैसे इंडिपेंडेंस से पहले यूरोपियंस यहाँ पे आते थे काम करने के लिए, तो उनके जो यहाँ पे बच्चे पैदा होते थे दे आर कॉल्ड एंग्लो इंडियंस. तो चेयरमैन सर अपने से मुझे करेक्ट कर रहे थे, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा टांग खींच रहे हैं. तो मैंने स्टैंड ले लिया था, लेकिन लास्ट में मैंने ये कह दिया कि सॉरी सर आई मे बी रॉन्ग. तो आगे से उन्होंने इमीडिएटली कह दिया कि नो यू मे बी राइट आल्सो. सो थोड़ी सी स्माइल्स वाइल्स वहाँ पे पास हुई थी हमारी, मतलब थोड़ा सा, बट एटमॉस्फेयर काफ़ी कॉर्डियल था. उसके बाद सर ने पूछा कि राज्यसभा के कितने मेंबर्स होते हैं. तो आई टोल्ड देम कि 250 मेंबर्स. फिर उन्होंने पूछा कि नॉमिनेटेड कितने होते हैं. मैंने कहा कि 12 होते हैं, प्रेसिडेंट करता है. तो ये चेयरमैन सर का शुरू में था. उसके बाद जब मेंबर एक्सपर्ट जब एक्सपर्ट थे उनके कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कोई मतलब स्माइल नहीं थी, कुछ नहीं था. ही वॉज वेरी एक्सप्रेशनलेस. ही वॉज अ सीनियर मेंबर, एंड he started grilling me. He took those areas of the constitution which no one can expect. I think no one, very less people can answer those areas. मैं आंसर कर पाया था.
लगभग 80-90%। रीज़न बीइंग कि मेरी पुरानी जो नॉलेज थी यूपीएससी की, केएस की, जब मैंने इतने टाइम से जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा था, तो उस नॉलेज की वजह से मैंने वो आंसर किया। तो पहला क्वेश्चन उसमें ये था कि आप बताइए कि जीएसटी को लेके, जीएसटी का कौन सा प्रोविज़न है, प्रोविज़न कहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो मैंने कहा कि 279 ए। उन्होंने कहा नहीं, दिस इज़ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी लिवाई जो टैक्स के बारे में वो कहाँ मेंशन है? तो वो मुझे उस टाइम याद नहीं आया। मैंने कहा सर आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली रिकॉल दैट। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा कि ये बताओ कि आर्टिकल 19(1)(g जो है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड दिस कॉमर्स एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, एंड आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी फ्रीडम ऑफ ट्रेड की बात करता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? नाउ दिस इज़ अ वेरी, आई थिंक, इग्नोर्ड पार्ट। 301 से लेके 305 तक जो हैं आर्टिकल्स कोई पढ़ता नहीं है, बट मैंने पढ़े थे, मैंने बेरेक से भी पढ़े थे, मैंने लक्ष्मीकांत से भी पढ़े थे। सो आई वॉज एबल टू टेल देम द डिफरेंस। जनरली डिफरेंस ये होता है कि वो एक आर्टिकल 19(1)(g जो है वो सिटीजन्स को अवेलेबल है, दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट। बट जो 301 के आगे प्रोविजंस है वो बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, कि उसमें कोई जो सेंटर है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा स्टेट्स के गुड्स के साथ, टैक्सेस नहीं लगाएगा बिना मतलब के, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, और कोई स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट के गुड्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। और उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, वो कर भी सकती है अगर सिमिलर काइंड ऑफ टैक्सेस उसने अपने स्टेट के गुड्स पे लगाए। सो द डिफरेंस वाज कि एक फंडामेंटल राइट्स है, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता था। और आर्टिकल 19(1)(g की वायलेशन पे जो है वो ऑब्वियसली वी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226। और जो आर्टिकल 301 है, अगर उसमें कोई वायलेशन होती है तो वो ऑब्वियसली वो एक ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसको हम कहते हैं 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो है एक डिस्प्यूट जो है लीगल डिस्प्यूट अगर होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, बिकॉज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो है वो डील करती है डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। सो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उन्होंने इसलिए पूछा कि मैंने खुद से अपने से एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बोला था, तो उन्होंने थोड़ा सा ये टफर साइड पे पूछा, मुझे ऐसा लगता है। फिर उन्होंने उससे भी टफ चले गए वो। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने बात स्टार्ट की कि टैक्सेस टैक्सेस कैसे डिवाइड होते हैं, हैव यू डू यू नो एनीथिंग अबाउट दैट, कि टैक्सेस कौन से लिवाई होते हैं स्टेट के द्वारा। जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा नर्वस हो गया अंदर ही अंदर, क्योंकि ये इग्नोर्ड पार्ट होता है पॉलिटी का, फाइनेंशियल रिलेशंस किसी ने नहीं पढ़े होते। कौन से टैक्स स्टेट लिवाई करता है, कौन से सेंटर करता है, कौन से शेयर करता है, कौन से स्टेट खुद रखता है, ये बड़ा ही इग्नोर्ड पार्ट होता है। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं, मुझे एक नॉलेज थी, क्योंकि काफ़ी इतनी बार मैंने प्रिपेयर किया, अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो थोड़ी बहुत नॉलेज थी मुझे उसकी। तो मैंने उनको वो बताया कि सेंटर जो है वो शेयर करता है टैक्सेस, और कौन से लिवाई करता है वो भी, तो उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता था, बट जितना पता था उतना मैंने बताया। तो उसके बाद मैंने एक थोड़ा सा कह दिया कि जो सेसेस और सरचार्ज हैं वो डिवाइड नहीं होते। तो ये मेरी बेसिकली एक बेसिक जो है केएस वगैरह की, उसमें थोड़ी सी इकोनॉमी की नॉलेज होती है, तो वो थी। तो उसके बाद सेसेस एंड सरचार्ज के बाद उन्होंने पूछा कि ओके हाँ, तो जो ये वाला मेरा कॉन्स्टी का पार्ट था। और अगर मैं यहाँ पे कोलैप्स हो जाता या मतलब नहीं आंसर कर पाता तो शायद इंटरव्यू आगे ख़राब जाता, लेकिन होपफुली मैंने आंसर कर दिए थे ये वाले क्वेश्चन। उसके बाद सर, उसके बाद जो जुडिशल मेंबर है उन्होंने मेरे से सवाल पूछे। उन्होंने पहला सवाल पूछा डिफ़ॉल्ट पे पे, वो थोड़ा सा हमारा लंबा चला गया था, और थोड़ी सी हमारी ना मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। जो वो पूछना चाह रहे थे शायद मैं नहीं समझ पाया, या उन्होंने जब मैंने जो कहा शायद वो नहीं समझ पाए। तो थोड़ी सी वहाँ पे मुझे ऐसा लगा लास्ट में कि मिसकम्युनिकेशन हो गई है। उन्होंने कहा डिफ़ॉल्ट विल के बारे में क्या क्या पता है आपको? मैंने बताया 167 सेक्शन है उसमें, जो है बेसिकली आफ्टर 60 डेज़ या 90 डेज़ अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो देयर इज़ अ राइट ऑफ डिफ़ॉल्ट विल, और वो राइट तब तक ही है जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो। और अगर उस पीरियड में आपने राइट एक्सरसाइज नहीं किया और बाद में सपोज 100 डे पे चार्जशीट फाइल होती है तो उसके बाद आपका राइट नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, मैंने एक और बात कही कि मैंने कहा सर रिसेंट जजमेंट अभी आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो उन्होंने कहा, उसमें कहा गया है कि द डे ऑफ रिमांड शैल बी काउंटेड, एंड अगर 91th डे पे जो है उसका राइट अप्रूव हो जाएगा। तो जो एक एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि 2-3 दिन पहले जजमेंट आई है या 4 दिन पहले। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, क्या आप क्या कह रहे हो, वो तो मार्च के लास्ट वीक में आई है। तो मेरा इंटरव्यू 7th को था, तो कितने मतलब 10 दिन का ही फ़र्क था, तो दे वर ट्राइंग टू ग्रिल, मतलब वो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऐसे शेक करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जजमेंट? मैंने कहा सॉरी सॉरी सर, आई आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट, मुझे कंटेंट पता है।
तो फिर मेंबर जो थे, जुडिशियल मेंबर थे, उन्होंने पूछा कि एक्चुअली उनका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया शायद। उन्होंने पहले डिफ़ॉल्ट मेल पे पूछा, उसके बाद वो चले गए थे जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम एक्सटेंड करने के, और उन्होंने वो प्रॉपर्ली मतलब शायद उन्होंने भी नहीं प्रॉपर्ली बोला। तो उन्होंने कहा कि क्या ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है? तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि डिफ़ॉल्ट मेल का पीरियड पूछ रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर, ये तो 90 डेज़ के बाद उसका राइट ही राइट है अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, स्पेशल एक्ट्स हैं कुछ, उसमें क्या है? मैंने कहा यस सर, जैसे स्पेशल एक्ट्स हैं, एनडीपीएस है, उसमें उसमें जो है बेसिकली आर्टि ये सेक्शन 1924 27 ए, और कमर्शियल क्वांटिटी के लिए जो पीरियड है वो 180 डेज़ है, और वो एक्सटेंड हो जाता है पीपी के, अगर पीपी आपको कहता है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड जज थिंक सो, तो वो एक्सटेंड कर देते हैं 1 ईयर तक। ही सेड यस ओके, बट ही सेड कि अगर लेट्स से कि 90th डे पे वो एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, तो मेरे दिमाग में जो था वो बेसिकली डिफ़ॉल्ट मेल का चल रहा था, लेकिन वो शायद पूछ रहे थे कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन का पीरियड एक्सटेंड हो सकता है? तो थोड़ा सा मतलब मैंने जो आंसर किया वो सही था, बट शायद जो वो पूछना चाह रहे थे वो नहीं मैंने आंसर किया। तो फिर वो मुझे समझाने लगे, थोड़ा सा उन्होंने समझाया कि हाँ ये एक्सटेंड हो सकता है या जो भी है। तो उस टाइम समझ तो मुझे कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि नहीं पता चलता अगर मैं थोड़ा सा ध्यान भी मैंने नहीं दिया उस बात को। उस टाइम इतना मतलब नहीं, थोड़ा सा हमारी सेंसेस भी काम नहीं करती, तो ये थोड़ा सा ऐसा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि समन ट्रायल और वारंट ट्रायल क्या है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मतलब लंबा जाने की कोशिश की। मैंने कहा बेसिक से बताता हूँ कि समन केस क्या होता है, वारंट केस क्या होता है, डिफरेंस क्या है, ये चार्ज फ्रेम। तो वो ना एक्चुअली टू द पॉइंट सुनना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगा। तो आप अगर लंबा करोगे तो आप टू द पॉइंट आंसर करो। तो मैंने उनको बताया, तो फिर उन्होंने, हाँ, मैंने बताया कि उसमें चार्ज फ्रेम जो होता है हो भी सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसमें चार्ज फ्रेम हो समन केस में, और वारंट में तो ऑब्वियसली होता ही है। वारंट में जो है आफ्टर जब उसको लाया जाता है उसके बाद एक इसकी स्टेज होती है, डिस्चार्ज की स्टेज होती है, समन में नहीं होती। समन जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसीजर है बिकॉज ऑफ द लेस सीरीज ऑफेंसेस। वारंट में एक एक्सप्लेन मतलब डिटेल प्रोसीजर है। तो ये सब मैंने उनको बताया, अच्छे से बताया मैंने। उसके बाद उसके बाद एक्सपर्ट ने पूछा। हाँ, एक्सपर्ट जो थे वो थोड़े से एक जो एक्सपर्ट थे वो ही वाज ट्राइंग टू शेक द कॉन्फिडेंस, और वो थोड़ा सा ना मतलब रैंडम चीज़ें पूछ रहे थे। ऐसे उन्होंने पूछा व्हाट इज़ सेक्शन 357 ऑफ आईपीसी। अब 357 ऑफ आईपीसी तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था, बट मुझे ये पता था 49 में फोर्स है, 50 में क्रिमिनल फोर्स है, 51 में असॉल्ट है, 54 में 354 में क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट टू आउटरीच द मोडेस्टी ऑफ वुमेन है। तो मैंने उनको कहा कि सर इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट एंड एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ दैट, बट आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिकॉल दैट। तो उन्होंने कहा ओके नो इशूज़। तो थोड़ा सा मेरे को आइडिया था उस चीज़ का। फिर मेंबर साहब ने एक रैंडम सेक्शन पूछ दी कि सेक्शन 327 ऑफ सीआरपीसी क्या है। वो मुझे आती थी, बट मैंने जैसे किसी से बात की थी एक बार पहले, तो उन्होंने कहा था कि जंप नहीं करना सीधा क्वेश्चंस पे कि हाँ मुझे आता है तो इमीडिएटली, नो, टेक योर टाइम। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे टाइम लेने की कोशिश की कि सर आई वांट टू रिकॉल, पता था मुझे। तो मैंने कहा कि सर दिस दिस रिलेट्स टू द ओपन कोर्ट्स, इट सेज दैट द कोर्ट शैल बी ओपन एंड बिकॉज दैट दिस एक्सेस टू जस्टिस एंड ऑल दोज थिंग्स लाइक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी था मैंने वो बताया। और मैंने कहा कि द जज हैज़ द डिस्क्रिप्शन टू एक्सपेल एनी वन फ्रॉम द कोर्ट। और मैंने एक्चुअली में देखा भी था, एक एनआईए का केस था हमारे जम्मू में। तो अश्विनी सर जो हैं सेशन जज हैं, उनकी कोर्ट में था वो केस था। इसका यासिन मलिक का था शायद। उसमें क्या हुआ कि सारा कोर्ट भर गया, सारे हम भी जो जूनियर वूनियर सारे उसमें सीनियर एडवोकेट्स आए थे। असलम गोनी साहब, ये अनिल सेठी साहब, और भी बड़े बड़े एडवोकेट्स थे उसमें। तो सारे वो कोर्ट भर गया, तो उन्होंने जज साहब ने कहा कि इनको बाहर निकालो, कोर्ट खाली करो। वो मेरे को ऐसे एक प्रैक्टिकल था कि हाँ जज जो है वो कर सकता है। तो वो मैंने बताया। तो उसके बाद एक्सपर्ट पे लेके बात, एक्सपर्ट ने कहा कि बीच में वो पूछते जा रहे थे सॉरी। एक्सपर्ट ने पूछा कि हाँ, कि एक जजमेंट आई थी 2018 की जो लाइव उसकी है, जो लाइव अभी स्ट्रीमिंग हो रही। उस टाइम थोड़ा सा मतलब मेरा एग्जैक्टली दिमाग जो है ना मतलब क्लिक नहीं किया। आल्दो इंटरव्यू से पहले मैं लाइव जो थी प्रोसीडिंग्स थी इसकी महाराष्ट्र केस की जो लाइव प्रोसीडिंग चल रही थी, मैं रोज़ सुनता था। हरीश साल्वे एंड दिस अभिषेक मनु सिंघवी एंड कपिल सिब्बल सर की मैं सुनता था। लेकिन उस टाइम थोड़ा सा मेरा दिमाग में हिट नहीं किया, तो मैंने कहा यस सर, जो भी था मैंने उनको थोड़ा बहुत जो मुझे पता था तो मैंने उनको बताया। तो उसके बाद
हाँ, उन्होंने पर्टिकुलर शायद मैं नहीं बता पाया कि एग्जैक्टली 2018 की जजमेंट में क्या था, बट जो भी मुझे पता था तो थोड़ा सा मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा मेरे को उम, हाँ, उन्होंने पूछा कि जुडिशियल मेंबर ने पूछा कि जुडिशियल मेंबर ने पूछा कि जो कंप्लेंट केस है, लेट्स से वारंट केस है और उसमें जो है कंप्लेनेंट जो है वो आ नहीं रहा बार बार, तो उसमें क्या होगा। तो तो मैंने थोड़ा सा मुझे पता था सेक्शन 349 है, तो मैंने थोड़ा सा टाइम लेने की कोशिश की। तो जस्ट अ सेकेंड। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लेने की कोशिश की उसमें, और तो मैंने उसमें ये कहा कि उसमें 329 हाँ, तो उन्होंने पूछा कि अगर कंप्लेंट केस है तो कंप्लेनेंट जो है, वारंट केस है, कंप्लेनेंट नहीं आ रहा तो क्या होगा। तो जैसा कि मैंने टाइम लेने की कोशिश की, तो जो एक्सपर्ट थे वो बीच में उन्होंने कह दिया कि ओके, आई टेल यू द सेक्शन मुझे पता थी 249, बट उन्होंने कहा 249 सीआरपीसी बताओ। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं अभी कहने ही लगा, एंड मैंने कहा कि सर अगर जो है वो नहीं आ रहा तो उसमें क्या है कि अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है या कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एंड उसमें ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अभी मैं इतना ही बोल रहा था, तो वो ना ऐसे उन्होंने मतलब एक थोड़ा सा मेंटल मेरे को शेक डाउन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा यार क्या आप हंसने लगे कि एक्सपर्ट। मैंने कहा यार आप क्या कह रहे हो कि वारंट केस है और कंपाउंडेबल केस है, वारंट केस कैसे कंपाउंडेबल हो गया। तो उस टाइम क्या होता है, हम थोड़ा सा मतलब इतनी हमारी सेंसेस भी काम नहीं करती हैं, तो मुझे पता था कि ये है, बट कहीं ना कहीं डाउट थोड़ा सा क्रिएट हो गया कि वो कंपाउंडेबल था, कॉग्निजेबल था या बेलेबल था, क्या था। बट मैंने थोड़ा सा उसको थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने सही बोला था। तो उसके बाद मैंने कहा कि सर, मैं दूसरे पॉइंट पे आ गया कि मैंने कहा कि सर अगर एक तो पहली बात डिस्चार्ज होता है, दूसरी बात ये है कि वो चार्ज फ्रेमिंग से पहले ही डिस्चार्ज होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर चार्ज फ्रेम हो गया और फिर भी जो कंप्लेनेंट नहीं आ रहा तो क्या होगा। मैंने कहा उसके बाद एज सच कोई सीआरपीसी में प्रोविजन नहीं है, तो बेसिकली उसको ट्रायल जो है जज को कंटिन्यू करना है, क्योंकि वारंट केस एक सीरियस ऑफेंस होता है सोसाइटी के अगेंस्ट। तो कंप्लेनेंट के आने या ना आने से उस पर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये उन्होंने एक सवाल पूछा। उसके बाद जो है एक एक्सपर्ट ने पूछा कि लीगल एड जो है अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है, उसमें लीगल एड किस किस को मिलती है। अब ये भी मैंने पॉलिटी में पढ़ा था बाई चांस। तो जब हम प्री की तैयारी कर रहे थे तब भी मुझे मतलब अच्छे से मैंने देखे थे, और इंटरव्यू से पहले भी मैंने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी थी। तो मैंने उनको बताया कि ये था एक जैसे होते हैं एस टीज, डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, वीमेन, चिल्ड्रन, एंड वन थिंग आई सेड कि जिसकी इनकम जो है 1 लाख से कम है। नाउ द एक्सपर्ट सेड इमीडिएटली, ही सेड कि 1 लाख पर मंथ। तो मेरी भी ऐसे थोड़ा सा हंसी सी मतलब आ गई मुझे कि नहीं सर, 1 लाख पर मंथ नहीं, 1 लाख पर एनम। तो ही सेड ओके ओके। देन अनदर एक्सपर्ट ही आस्क्ड मी वेरी टफ क्वेश्चंस, मुझे ऐसा लगा कॉन्स्टिट्यूशन में। उन्होंने कहा कि हैव यू हर्ड कि रेजिड्यूअरी पावर में पार्लियामेंट ने अभी तक कौन सा लॉ बनाया है, और क्या कौन सा लॉ है वो, क्या आपको पता है। तो वो, अब मैंने इतनी पॉलिटी पढ़ी है, बट मैंने कभी मतलब नहीं मेरा ध्यान गया इस पॉइंट पे। तो मैंने कहा सर नो, आई डोंट नो, मैंने सीधा ही कह दिया, क्योंकि नहीं पता था मुझे कि रेजिडरी पावर में कौन सा पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है। तो मैंने उसका सीधा कह दिया। उसके बाद मेरे को और क्या पूछा उन्होंने, हाँ, बस मेन जो था मेरा शायद इसी पे चला लगभग। कुछ क्वेश्चंस मे भी स्किप हो गए हों मेरे माइंड से, बट जनरली इसी इसी पे सारा चला। और एक फिर लास्ट में आया सारा, जो मेरा लास्ट था वो उन्होंने पूछा मेरे को मीडिया वन के केस के बारे में। तो ऐसा था कि मेरे को पहले भी किसी ने कहा था कि आप उस दिन का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, पर मैंने पहले ही 2-3 महीने पहले ही मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू कर दिया था। और उस दिन भी इंटरव्यू से पहले मैं बाहर जो सोफाज होते हैं वहाँ बैठ के मैंने 2 न्यूज़पेपर पढ़े, उस दिन का और ऑनलाइन, और एक पिछले दिन का इंडियन एक्सप्रेस। उसमें जो था शायद उस दिन के या पिछले दिन में जो था, एक प्रॉपर एक्सप्लेन्ड आर्टिकल था मीडिया वन के केस के बारे में, प्रॉपर एक्सप्लेन। उसमें सब कुछ था, हिस्ट्री, फैक्ट्स, क्या उसमें हुआ है क्या नहीं हुआ।
तो मैं खुश हो गया कि चलो ये तो आता है मेरे को, तो मैं बताने लग गया उनको फैक्ट्स। मैंने स्टार्ट कर दिया बताना कि सर ऐसे ऐसे 2010 में इनको मिला था लाइसेंस, एंड 2021 या 22 में जो है वो रिन्यू नहीं हुआ बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स, होम मिनिस्ट्री ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो मैं उनको फैक्ट्स बता रहा था, बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द फैक्ट्स। ही सेड दैट ओके लीव दिस फैक्ट्स, जस्ट टेल मी टू थिंग्स दैट हैज़ बीन मीन्स दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दैट केस। तो मैंने कहा उनको कि कि फर्स्टली कि जो उसमें था कि ये कहा गया था कि नेशनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का जो ग्राउंड है वो जो है दे शुड बी सम मटेरियल ऑन ग्राउंड, जिसके बेसिस पे आप जो है उनकी जो आप उसका जो लाइसेंस अगर आप नहीं एक्सटेंड कर रहे हो तो उसके लिए कोई ग्राउंड मटेरियल्स ऑन ग्राउंड होना चाहिए, और एप्लीकेशन ऑफ माइंड के होनी चाहिए उसमें। और उसमें क्या कहा था मैंने, और उसमें ये कहा था कि मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, एप्लीकेशन ऑफ माइंड होनी चाहिए और मटेरियल होना चाहिए। इसी इसी बारे में मैंने कुछ बताया था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, हाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, सॉरी फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में मैंने बताया था कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्प्लिसिट इन अंडर आर्टिकल 19(1)(a), और ये सब मैं बता रहा था। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि दूसरी चीज़ सील्ड कवर प्रोसीजर जो था वो डेप्रिशिएट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और मैंने वही कहा कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ डेप्रिशिएटेड द सील्ड कवर प्रोसीजर। उन्होंने कहा सील्ड कवर क्या होता है, क्यों अप्रिशिएट किया। मैंने कहा कि फिर मैंने बताया उनको जो भी था। सील कवर बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है एक सील कवर में कम्युनिकेशन करती है, जो भी फैक्ट्स होते हैं वो कोर्ट के सामने रखती है, वो किसी को भी पता नहीं चलेगा, पब्लिक को नहीं चलेगा, मीडिया को नहीं चलेगा, वो चीज़ जो पार्टीज़ हैं जिनके राइट्स वायलेट हैं, जो कोर्ट में गए हैं उनको भी पता नहीं चलेगा। तो उससे क्या होता है कि ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसी न्यूज़पेपर में कि जिसका राइट लेट से फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो वो आर्टिकल 32 में जब जाएगा तो उसके पास फैक्ट्स ही नहीं होंगे, उसको पता ही नहीं होगा ग्राउंड्स क्या हैं। सो दिस इज इन फैक्ट अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये मैंने कहा। उसके बाद मैंने उसके बाद उन्होंने पूछा कि सील्ड कवर प्रोसीजर जो है वो उससे पहले क्या होता था, सॉरी मतलब हाँ उन्होंने पूछा किस किस रूल के अंडर ये था सील्ड कवर प्रोसीजर। तो मुझे रूल तो एग्जैक्टली याद नहीं था किस रूल के अंडर था, तो मैंने कहा सर मुझे रूल का नहीं पता। फिर दूसरी चीज़ मैंने कही कि पहली तो नेशनल सिक्योरिटी थी, दूसरा सील्ड कवर प्रोसीजर था जी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि एक पब्लिक इम्यूनिटी क्लास जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी जो है क्लास रेदर देन सील कवर, पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी क्लास जो है वो यूज़ की जा सकती है। उसमें क्या होता है कि रेलेवेंट पोर्शन जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, बाकी सारा मटेरियल जो है वो पब्लिक में लाया जाएगा। तो ये उसमें था। तो ये मतलब मेरा लास्ट क्वेश्चन जो था काफ़ी अच्छा गया क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर उस दिन की पढ़ी थी। सो दिस वाज द आफ्टर दैट, आफ्टर दिस क्वेश्चन चेयरमैन सेड, सर सेड थैंक यू। थैंक यू कहा तो मैं उठा नहीं उसके बाद, क्योंकि हो सकता है कि अभी चलना हो इंटरव्यू, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि योर इंटरव्यू इज़ ओवर नाउ। तो आफ्टर दैट आई जस्ट एग्जिटेड, एंड ये इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था। इसमें मैंने कुछ चेंजेस की थी। पहली चेंज ये थी कि लाइक मुनसिफ के टाइम मेरा इंटरव्यू थोड़ा अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा नॉलेज पार्ट पे ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि लैकिंग था मेरा। तो इस बार मैंने काफ़ी प्रिपेयर किया था। मैंने सीपीसी सारी टकवानी दोबारा से मैंने पढ़ दी थी। मैंने बेयर एक्ट एवरी ऑर्डर एवरी रूल, मतलब मुझे लगभग आइडिया था। सीआरपीसी की सेक्शंस, आईपीसी, मतलब अच्छे से मैंने इस बारी प्रिपेयर किया था। तो दूसरी दूसरी चीज़ ये थी कि आई टॉक टू मैनी एस्पिरेंट्स जिन्होंने पीओ का इंटरव्यूज़ दिया था। मैंने उनकी डिटेल्स खुद सर्च की, लिस्ट देखी, नंबर्स व्हाट्सएप से ढूंढे, मैसेज किए, बहुत सारों ने हेल्प किया, कॉल कॉल पे बात की, बहुत हेल्प किया उन्होंने, गाइड किया। एग्जैक्टली क्वेश्चंस किसी को पता नहीं थे, याद ही नहीं थे, तो उन्होंने फिर जर्नल ही जैसा वो कर सकते थे किया। मैंने भी आइडिया लिया उससे। कुछ ने नहीं किया, कुछ ने कहा हम करेंगे, ओके विल टॉक, नहीं किया। मैं समझ सकता हूँ कि समय की दिक्कत होगी ऑब्वियसली। तो मैंने जो भी मैंने जिनसे भी मैंने बात की, तो मैंने वो क्वेश्चंस लिख लिए थे, है ना। उसके बाद हमारे एक सीनियर थे, मैम थे हमारे, उनसे भी बात होती थी। तो उन्होंने भी जब हम इंटरव्यू दे के आए उन्होंने भी बताया डिटेल में कि क्या उनको पूछा। फिर मेरा एक फ्रेंड था जो अभी पीएलओ लग गया है, उसका भी उसी दिन था, उसने भी बताया। तो रैंडम लोगों से भी बात की, तो उससे मेरे को एक पता चल गया था कि ट्रांसक्रिप्ट क्या है। और शायद हमारे इंटरव्यू में कुछ पहले दिन के लिए एक्सपर्ट अलग थे, उनको कुछ और सब्जेक्ट्स पूछे, जूरिस्प्रूडेंस, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट पूछे। हमने भी पढ़ लिए थे वो सारे, हमें लेकिन हमारे टाइम एक्सपर्ट्स चेंज हो गए थे, कुछ इशू हुआ या क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। तो ये थोड़ी सी मैंने चीज़ें चेंज करने की कोशिश की थी। और मैंने मॉक इंटरव्यूज भी देखे थे। तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें देखी थी कि जैसे आप बोल रहे हो, कोई आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको सबकी तरफ देखना है। जब शुरू मैंने किया इंट्रोड्यूस,
तो मैंने पहले सर की तरफ देखा, फिर वो मेंबर थे वो भी स्माइल कर रहे थे, उनकी तरफ देखा, एक्सपर्ट्स। तो वो एक बड़ा अच्छा लगा मेरे को, लेकिन बाद में वो चीज़ भूल जाती है। बाद में क्या होता है, ऐसे बम्बार्डमेंट ऑफ क्वेश्चंस होती है और आपको सिर्फ वही दिखता है। बीच में इनफैक्ट क्या हुआ कि मेंबर साहब जो थे हमारे जुडिशियल मेंबर, वो उठे, मुझे इतना पता है कि वो उठे कहीं गए, उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, कब वापस आए। मतलब साथ में मेरे बैठे थे तो कोई मेरे को, मतलब उस टाइम नहीं इतनी सेंसेस काम करती है, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है हमारा दिमाग वहाँ पे ही होता है। क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन नहीं अच्छे से सुना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बार बार उनको कह भी नहीं सकते कि रिपीट करो, है ना, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैंने चेंज की। और बस ऐसे ही मेरा इंटरव्यू कोई 17 से 19 या 20 मिनट गया था। और इस बार मार्क्स ठीक थे मेरे, 25 में से देखो पीएससी ने इस बार रेंज कम रखी है, 14 to 18 रखी है, और अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि इंटरव्यू के बेसिस पे मुझे लगता है एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। नॉलेज ऑब्वियसली है, नॉलेज है, बट हाउ डू यू प्रेजेंट दैट नॉलेज, वो मैटर करता है। तो इसलिए रेंज इन्होंने थोड़ी कम रखी है, क्योंकि अगर 10 से 20 हो तो गेम सारी पलट जाती है। तो इन्होंने 14 से 18 के बीच रखी थी। हमने ये चीज़ एनालाइज कर ली थी जब ए की लिस्ट आई थी, तो उसमें भी सेम 14 से 18 थी। तो हाईएस्ट जो है वो 18 है, मेरे 16.5 थे, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, ठीक है। और मेरा मेरा थोड़ा रिटर्न में स्कोर ज़्यादा था, तो मैंने वही एनालाइज आफ्टरवर्ड्स किया कि अगर मेरे को 4 या 5 भी 25 में से मिलते तो मैं तब भी अंदर था। इट वॉज़ अ वेरी बिग मार्जिन, वेरी वेरी बिग मार्जिन। और मुझे लगता है कि रिटर्न में शायद इतना स्कोर है नहीं किसी का। हालांकि जब मैंने काउंट किया था तब मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे पास OMR मेरी गुम हो गई थी, और मैंने क्वेश्चन पेपर से किया था, तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चल रहा था। और मुझे ये पता था कि हाँ, वन अमंग द हाइएस्ट है। तो थोड़ा सा र्यूमर भी चल पड़ा था 68 69 कुछ ऐसा। तो मेरे को एग्जैक्टली पता, मैं कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर वो थोड़े फिर हायर साइड चला गया, 676 तक पहुँच गया। और मुझे लगता है 70 से ऊपर सिर्फ 2 ही लोग होंगे थे। तो वो मैंने यही इसीलिए माइंड में रखा था, स्कोर ज़्यादा करना, कि कल को इंटरव्यू ख़राब भी हो जाता है तो उस बेसिस पे आप बाहर नहीं होने चाहिए। क्योंकि मैं मुंशी में हुआ था, मुंशी में मेरा 12th रैंक था स्टेट में, मेंस में। 12th से बेटर ही था वो, बट चलो आई विल एक्सेप्ट इट एज 12th। तो क्योंकि हमें एक पेपर में टॉर्ट्स कंट्रैक्ट में हमें कुछ मार्क्स नहीं दिए गए थे, जो कि बहुत अच्छा पेपर था। खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो उसमें मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, तो इंटरव्यू के बेसिस पे मतलब बाहर हो गए थे हमें। तो 5 साल का वो, आफ्टर दैट 22 अगस्त 2019 के बाद, पाँच, अब कितने साल हो गए, 2021 22, लगभग 4 साल, 3.5 साल। तो वो 3.5 साल की जो एक मतलब एक टफ टाइम था, तो वो मुझे याद आया कि इंटरव्यू में हम लापरवाही नहीं कर सकते। वो लापरवाही मुझे 3.5 साल की पड़ी। और तो इस बार मैंने थोड़ा सा कॉशियस रहा मैं इस बार। तो बस यही था। और बाकी इंटरव्यू की मैं सबको कहूँगा कि जिसने पीओ का भी दिया है, जिसने पीएलओ का भी दिया है, वो सारे अपनी ट्रांसक्रिप्ट शेयर करें, ताकि एक ना जम्मू के जो एस्पिरेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, ऑब्वियसली दे लुक टू अदर स्टेट्स, लेकिन क्या होता है, स्टेट स्टेट का फ़र्क होता है। अपनी स्टेट का एक आइडिया मिल जाए तो उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो बस लगभग मेरा यही था इंटरव्यू को लेके। एंड सो दैट्स इट। एंड हाँ, वन थिंग आई डिड फॉर द इंटरव्यू, लाइव लॉ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। लाइव लॉ की मेजर जजमेंट्स ऑफ 2020, दिस 23 की कौन कौन सी थी, 22 की कौन कौन सी थी, ये हमने पीओ के लिए भी पढ़ा था। जो उसमें करंट पूछते हैं सीजर में, तब भी पढ़ा था, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ा था। तो लाइव लॉ से टच में रहिए, दिस हेल्प्स लॉट फॉर द इंटरव्यू, जनरली मेन सीन्स के लिए इतना हेल्पफुल नहीं है, बट इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और आपकी नॉलेज, आपकी कंसेप्ट क्लियर करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। So that's it. Thank you very much, and those who are preparing for PO, all the best to them. And there is sufficient time. Don't worry. Go hardcore. Uh, छोड़ दो सब कुछ अभी। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी है, फेसबुक फेसबुक सब छोड़ दो, दोस्त वोस्त सब छोड़ दो। सन्यासी बन जाओ थोड़े दिनों के लिए। हम बने थे पिछले काफ़ी सालों के लिए। तो किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी को कम टाइम में मिल जाती है चीज़। बट आपको जो है स्ट्रगल करना है, आपको आपको हार्डवर्क करना है, आपको ये सब चीज़ें छोड़नी है। इन चीज़ों के साथ में नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। तो अभी 40 डेज़ हैं या 50 डेज़ जितने भी हैं, आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अच्छा मौका है, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, दोबारा नहीं मिलेंगी। एंड जस्ट डू इट। थैंक यू वेरी मच।